شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے لفظوں کو عطا کر وہ حرارت یا رب۔ آج کے سیمینار میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے منشی پریم چند کے ہندوستانی تہذیب میں اثرات۔ منشی پریم چند کا دور 1880 سے 1936 تک رہا۔ ان کو ہندوستانی ادب کا ایک عظیم مصنف اور حقیقت پسند ادیب مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندی اور اردو میں افسانے اور ناول لکھے جن میں ہندوستانی معاشرت، ثقافت اور سماجی مسائل کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے ادب میں ہندوستان کی تہذیب اور عوامی زندگی کے کئی عناصر نمایاں ہیں۔ ہندوستانی دیہاتی زندگی میں منشی پریم چند نے دیہات کی زندگی کو حقیقی رنگ میں پیش کیا۔ ان کے مشہور ناول گودان اور رنگ بھومی میں کسانوں، زمینداروں اور غریب طبقے کے مشکلات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہندوستان کے عام انسان کی جدوجہد اور محرومیوں کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں جگہ دیتے ہیں۔ سماجی برابری اور ذات پات کا مسئلہ۔ ہندوستانی معاشرت میں ذات پات کی تفریق ایک اہم مسئلہ رہی ہے۔ پریم چند نے اپنے ناول کرم بھومی اور کئی افسانوں میں دکھایا کہ کس طرح اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے افراد کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ خواتین کے حقوق اور ان کی جدوجہد۔ پریم چند نے ہندوستانی خواتین کے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے نرملا اور سیرسدن جیسے ناولوں میں بیوہ عورتوں، جہیز کے مسئلے اور فطرت نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی تحریریں خواتین کے جذبات، خوابوں اور ان کے ساتھ ہونے والے استحصال کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ حب الوطنی اور آزادی کی تحریک۔ پریم چند نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو بھی اپنے ادب کا حصہ بنایا۔ ان کے کئی افسانے اور ناول آزادی، قوم پرستی اور برطانوی استبداد کے خلاف بیداری پیدا کرتے ہیں۔ کفن اور خون کی رات جیسے افسانے عوام کی مشکلات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ رنگ بھومی میں استعماری حکومت کے خلاف مزاحمت کا رنگ نمایاں ہے۔ ہندوستانی تہوار، روایات اور رسم و رواج۔ ان کی کہانیوں میں ہندوستانی معاشرت کی ثقافتی جھلک بھی ملتی ہے۔ ہولی، دیوالی، شادی، عید اور دیگر تہوار کا ذکر ان کے افسانوں میں عام ہے۔ وہ ہندوستانی روایت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان میں موجود ناانصافیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ مذہبی رواداری اور بین المذہب ہم آہنگی۔ پریم چند کے ادب میں ہندو اور مسلم اتحاد کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے کردار مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں، عیدگاہ اور تحفہ اس بات کا عمدہ مثالیں ہیں جن میں ہندو مسلم بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے۔ اخلاقیات اور انسانی جذبات۔ پریم چند کی تحریریں سادگی، ایمانداری، قربانی اور انسانی ہمدردی جیسے عناصر سے بھرپور ہیں۔ ان کے افسانے زندگی کے حقیقی اور مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور اصلاح کی راہ دکھاتے ہیں۔ منشی پریم چند کا ادب ہندوستانی سماج کا حقیقی عکس ہے۔ ان کے ناولوں اور افسانوں میں ہندوستانی عوام کے دکھ سکھ، روایات، نابرابری اور آزادی کی جدوجہد سب کچھ موجود ہے۔ وہ ایک ایسے ادیب تھے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سماج کی عکاسی ہی نہیں کی بلکہ اسے بدلنے کی کوشش بھی کی ہے۔ شکریہ۔ نیکسٹ شہناز بانو۔ السلام علیکم، میں شہناز بانو، اردو اینڈ پرشین ڈپارٹمنٹ کی 4th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ۔ میرا ٹاپک ہے قومی یکجہتی۔
قومی یکجہتی ایک ایسا نفسیاتی امر ہے قومی یکجہتی ایک ایسا نفسیاتی امر ہے جس سے اتفاق اور جذباتی ہم آہنگی کے خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ملک قومی یکجہتی سے ہی آگے بڑھتا ہے. اس سے لوگوں کے دلوں میں ملک کے لیے وفاداری آتی ہے, وفاداری پیدا ہوتی ہے. قومی یکجہتی کا تصور خیالی نہیں ہوتا. قومی یکجہتی بلکہ فطری, داخلی اور دماغی ہوتا ہے. اس فطری جذبے کے ذریعے ہم نہایتی عمدگی سے اس الفاظ کو اجاگر کرتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ چمن بندیوں کا شوق ہو, ممکن ہے کہ آپ میں چمن بندیوں کا شوق ہو. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چمن میں مختلف ریشوں کے مجموعے ہیں اور ہر ریشے میں پھول رنگ بو کے آئینہ دار ہے, یعنی مختلف پھولوں کے مجموعے حیثیت کے باعث چمن کہلاتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر رادھا کرشن نے کہا ہے کہ قومی یکجہتی ایک پتھر چھینی ہتھوڑے سے نہیں بنتے, بلکہ یہ تو پیار محبت دل و دماغ سے بنتے ہیں. اور اس سے پیدا ہونے کے ایک ہی راستے ہیں, قومی یکجہتی کے پیدا ہونے کے ایک ہی راستے ہیں, اور وہ راستہ ہے تعلیم کا راستہ. تعلیم کا راستہ تھوڑا سست ہے مگر مستقل ہے, ٹھوس ہے. دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہمارے ہندوستان میں مختلف فرقے, مختلف علاقے, مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, اور ایک ساتھ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ ایک ہی ملک, ہمیشہ ہی اس ملک میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائیوں نے دوستی اور محبت کی مثالیں قائم کی ہیں. قیوم خضری نے ہندوستانی ماحول اور سماج میں پیش نظر قومی یکجہتی کا ایک نہایتی پسندیدہ مفہوم پیش کیا ہے. اس تنصیری بیان میں بڑی حیثیت میں مفہوم لکھے ہیں. اردو زبان ہندو اور مسلمان کی میل جول کی جیتی جاتی اور ہماری گنگا جمنی تہذیب اور ہند ایران کے کلچر کی منہ بولتی تصویر ہے. اردو زبان کی تاریخ قومی یکجہتی کی تاریخ ہے. اردو زبان کی قومی یکجہتی کی السلام علیکم. اچھا لگے وہ اچھا لگا ہی ہوگا. شکریہ. بہت سارے بچے دیکھ رہے سر 5 منٹ لے لو نا. ابھی پڑھی لڑکی پڑھی کیا جس کو پڑھنا بولے تو اعلان جو پڑھنا چاہیے. اسٹوڈینٹ کوئی پڑھنا چاہے گا پرچہ اپنا فرسٹ سیمسٹر پرچہ پڑھ لو پڑھنا چاہے گا. اسلامک کالج سے مستقیم بھائی. السلام علیکم. میرے مقالے کا موضوع ہے ہندوستانی تہذیب کا شاہد مراد فیضی.
रोज अव्वल से फितरत का तकाजा रहे, मुल्क और कौम की जबान उस कौम की तहजीब और माशरत का आईना होती है। मुल्क हिंदुस्तान में सदी से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और इनके मेलजोल से मुश्तरका तहजीब का आगाज हुआ, जिसको हिंदुस्तानी अनासिर कहते हैं। रोज अव्वल से मुल्क अमन व अमान और इंसानियत का मरकज और जुल्म की फिजाओं में चमकता हुआ सितारा है। हड़प्पा, अजंता, कुतुब व ताज महल के ऊंचे मीनार इसकी अजमत और बुलंदी की जीती जाती मिसाल है। इस मुल्क में मुख्तलिफ कौम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनसे हम सब की कौमियत एक है। जिस तरह चमन में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल अपने शनाख्त के बावजूद गुलदस्ता में मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क में मुख्तलिफ शक्ल व सूरत, कबाइल और ज़बान व अक़ाइद के लोग कौमी एतबार से एक साथ में होकर अपने तख़सीस का फासला कर लेते हैं। हमारे अक़ाइद व रस्म व रिवाज में एक दूसरे से मुतासिर है, जो मुस्तशरिक़ा तहजीब का हिंदुस्तान की असल देन है। जिस तरह कदीम ज़माने से मारूफ व मशहूर शख्सियत पैदा होती आ रही है, उन शख्सियतों में इल्म व अदब के साथ साथ मुल्क व कौम की खिदमत की अंजाम दी। हिंदुस्तान में की इब्तिदा अमीर खुसरो के कलाम से होती है, जिनका पूरा कलाम हिंदुस्तानियत का अक्स नजर आता है। इसके बाद नज़ीर अकबराबादी, जिनकी पूरी शायरी हिंदुस्तानी रंग व अवामी ज़बान से लबरेज है। हिंदुस्तानी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल सबसे पहले नज़ीर ने किए। नज़ीर के बाद कबीर जो भक्ति के शायर और जात पात के मुखालिफ थे, कबीर राम और रहीम को एक ही मानते थे और हिंदू और मुसलमान कबीर को अलग अलग दिखाई नहीं देते थे। कबीर ने अपने कलाम में अरबी, फारसी, तुर्की लफ्जों का बाकसरत इस्तेमाल किया है। गुरु नानक के कलाम में भी पंजाबी असर नुमाया है, लेकिन उर्दू जबान का लफ्ज़ और लहजा मुकाबले तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी तहजीब के नुमाइंदा शायर तो के मशहूर व मारूफ शख्सियत मुराद सईदी है। मुराद सईदी के मजमूए कलाम को मुताला किया जाए, इसमें गंगा जमुनी तहजीब से मुज़य्यन उनकी शायरी है। उनकी शायरी में हिंदी अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मातम, सिंदूर, माता, टीका, रचाया, चेहरा, ढंग, उलझन, तन, लगन वगैरह। मुराद सईदी ने भी अपने जज्बात का इजहार शेरी असराफ में किया है। उनकी गजलों में जहाँ हुस्न व इश्क, रंज व मुसर्रत, विसाल व हिज्र की रिवायती मौज़ूआत क्लासिकी अंदाज में बयान किए गए हैं। वही नज़्मों में इज़हार अक़ीदत, हुब्बुल वतनी, हिज्र, करबलाई और शख्सी मर्सियानीस, हुस्न व इश्क पर शेरी नुमाया है। आज मैं आज़ाद हूँ, मेरा वतन आज़ाद है, अंजुमन आज़ाद, शम्ए अंजुमन आज़ाद है। मुराद की शायरी का एक खास वजह ये भी है, उन्होंने अपनी शायरी में हक बयानी के दामन को जाने नहीं दिया। मुराद ने आज़ादी की तहरीक भी देखी, आज़ादी का सूरत पूर्ण होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि जिन लोगों ने मादे वतन की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ वार कर दिया, उन्हें आज़ादी के बाद हाशिए पर कैसे डाल दिया गया। इस कद का इज़हार मुराद सईदी ने अपनी गजलों में कुछ इस अंदाज में करते हैं। आज़ादी से अच्छी थी वो जेठ हमारी, आज़ादी से अच्छी थी वो जेठ हमारी, आज़ाद हुए जब से परेशान बहुत है। मुराद इंसानियत के दिलदादा थे, उन्होंने जगह जगह अपनी शायरी में इंसानियत पर जोर दिया है। गालिब तरह वो भी जानते थे दुनिया में तो बहुत है, लेकिन इंसान कम है। इस जुम्ले में चंद अशार मुलाहिजा फरमाए। इंसान बन के आ तो गया आदमी मगर, इंसान बन के आ तो गया आदमी मगर, इंसान बन के ना है सका आदमी। इसके अलावा हिंदुस्तानी त्योहार होली, दिवाली, ईद पर हिंदू मुस्लिम के गले मिलकर खुश होकर तहजीब का इजहार करते हैं। जश्न दिवाली के हो या जश्न ईदेन के, जश्न दिवाली के हो या जश्न ईदेन के, हिंदू मुस्लिम खुशी से सब गले मिलने लगे। वाह मुस्तकीम भाई, आपका शुक्रिया। कोई भी नहीं आएगा, आवाज बंद कर दो, बंद कर दो। अब सर्टिफिकेट शाहिद सर, आगे सेकंड सेमेस्टर रुबीना मुस्कान। या अल्लाह मेरा सर फट गया। सर की नस बंदा बैठ जाओ,
सर सब कर गए आप ही बताइए मेरा पता नहीं होगा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am a student Urdu department of Person. Today my topic नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब की सकाफत की झलक। नज़ीर अकबर आबादी हिंदुस्तान में अवामी शायर के नाम से मशहूर है। इनकी नज़्मों में मौज़ूआत की एक दुनिया आबाद है। खास कर के इन्होंने जिन मौज़ूआत को अपनी नज़्मों का हिस्सा बनाया उनका ताल्लुक आवामी जिंदगी से है। आवाम में बैठना उठना इनका खास मशगूल था। यही वजह है कि आवाम की जिंदगी के हर पहलू की बारीकियों से वाकिफ थे। इन्होंने अपनी नज़्मों में इस बाखूबी का फायदा उठाया और आम इंसानों की जज्बात व एहसासात मुख्तलिफ इंसानों की मसाइल व मामलात को पहलू को अपनी नज़्मों में पेश किया और समाजी व माशराती हालात गर्ज के इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी नज़्मों में शामिल किया और आवाम के सामने इनकी हकीकी और जीती जागती तस्वीरें पेश की है। खास कर गरीब और मोहब्बत कश तबके से ताल्लुक रखने वाले आवाम इनके नज़्मों का हिस्सा है। इस सिलसिले में माशी बदहाली से मुतालिक इनकी नज़्में मुखलिसी काबिले जिक्र है जिसका काफी मकबूलियत मिली। नज़ीर की कुछ बनकर मुलाहिजा फरमाए। जब आदमी के हाल पे आती है मुखलिसी किस तरह से इसको सताती है मुखलिसी। प्यास तमाम रोज बिठाती है मुखलिसी। भूख तमाम रात सुलाती है मुखलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुखलिसी। नज़ीर की नज़्मों में एक खास पहलू जो सबसे ज्यादा काबिले तवज्जो है जो वो इनका मुकामी रंग और हिंदुस्तानी अनासर की तर्जुमानी है और हिंदुस्तान के खास कर मेले ठेले हिंदुस्तान मुस्लिम त्योहार खेल कूद तमाशे वगैरह जैसे मौज़ूआत को कसरत है। इस तरह मौसम फिजा मकाम और माहौल वगैरह की बेहतर अक्कासी की है इनकी नज़्मों में मौजूदा है। यही नहीं बल्कि इनकी नज़्में इखलाकी बातें नसीहत आमेज़ा बातें और ताक़ीद के मज़ामीन भी कसरत से शामिल है। इनकी तमाम मौज़ूआत की खुसूसियत ये है इनमें मकामी और हिंदुस्तानी रंग का गलबा है। नज़ीर को हिंदुस्तानी और तमाम तर हिंदुस्तानी तहजीब से बेहद लगाव था। इसका इजहार इन्होंने अपनी नज़म में किया है। नज़म के चंद पेश मुलाहिजा फरमाए। जब बहावन रंग झमकते हुए तब देख बहार होली की और तब से शोर खड़कते हुए तब बहार देख होली की। परियों के रंग दमकते हुए तब देखे बहार होली की। खम शीशे जाम झमकते हुए तब देख बहार होली की। महज इतना ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क में बसने वाले इंसान जानवर परिंदे चरिंदे कीड़े मकोड़े कर्ज के हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मखलूकात से नज़ीर को मोहब्बत थी। नज़ीर अकबर आबादी से हिंदुस्तान से माशरे से मुतालिक की मोहब्बत भरी नज़में लिखी। होली दिवाली राखी बसंत जन्म कन्हैया जी का बलदेव जी का मेला महादेव का बिया वगैरह। पतंगबाजी आगरा की तैराकी उर्स में हजरत सलीम चिश्ती शबे बारात ईद उल फितर जाड़ा उमस बरसात की बहारें ताजमहल तरबूजा ककड़ी तिल के लड्डू रीछ का बच्चा वगैरह की मकबूल नज़में हैं जिनमें आवामी जिंदगी के मुतालिक पहलू साफ नजर आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नज़म में हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब जैसे गंगा जमुना और ईरानी तहजीब कहा जाता है इसके मुख्तलिफ पहलुओं की झलक वाज़ेह तौर पर मिलती है। इनकी शायरी इतिहाद हिंदुस्तानी तहजीब की उम्दा मिसालें पेश करती है। समाप्त किया जाए।
अभी सर्टिफिकेट और इसके बाद आप बच्चे बैठे अब तो हमारे पंद्रह फोटो करवा दे सर हमारे नहीं पढ़ना फोटो करना क्या है चले के सामने चलते हैं घर जाके सब ला सर क्या बात है मैम अब सर्टिफिकेट का वितरण किया जाए कल होगा कल आना सर्टिफिकेट वितरित किए जाए सर क्या बात है मैं तो कॉपी भी क्यों लेके मैडम का नाम क्या है तस्नीन मैम सर्टिफिकेट यहाँ पे दीजिए मैं वहाँ नहीं ले रहे आप इधर शराब दे दो जो बोलते क्या हो रहा है खात्मा हो रहा है। अच्छा खात्मा हो रहा है लास्ट में क्या बताओ सर वो पर्चा पढ़ना तो पढ़ा दो वो पर्चे पढ़ने पड़ना साथ पूरे में आगे पीरियड का आएंगे आप बात करेंगे अभी तक आपने बड़े नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। ये आखिर का सेशन है, ये सेशन खत्म होने जा रहा है। इस सेशन का आखिरी निकाला मेरे काबिल साथी उस्ताद भी कह लो मौजूदा दौर के एक अहम नक्काश, जी हाँ मेरा इशारा शाहिद पठान साहब की जानिब है कि आप यहाँ आए और अपना मिसाला पेश करें। आप जो पर्चे पढ़े हैं सर वो शायद उतारे मेरा पर्चा है तनकीद उतारे नतीजन नारायण साहब हैं वो कादवार है और वो तहजीब लक्काब है। उन्होंने हिंदुस्तान के तहजीब मासिक पर काम किया है। मेरा पर्चा उसका उन्वान है तनकीद नारायण का तहजीबी सियार तहजीबी पसमंजर। तनकीद के बहुत सारे असालीब हैं, एक जो तहजीबी तरीक़ेकार भी इसके हवाले से लिखने की कोशिश की है और उसका तो मजमून है मोहतरम चौहान साहब तशरीफ दीजिए। तनकीद नारायण का तहजीबी सियार प्रोफेसर गोपीचंद नारायण का शुमार उर्दू के ग्रंथ पाया मुहक्किकीन और नक्कादों में होता है। उनकी तहजीब और तनकीद का दायरा शराबी अदब से लेकर जदीद और जदीद तरीन यानी कि जदीदियत और मवादी जदीद के शेर व अदब के मुताला तक उन्होंने उर्दू जुबान की पैदाइश, उसके इर्तिका और हिंदी उर्दू के बाहमी इर्तिबात की निशानदही के साथ ही हिंदुस्तान और गैर ममालिक में उर्दू ज़बान अदब के फरोग़ का जायजा लिया है। एक लिहाज से वो उर्दू के कबीर कहे जाते हैं। डॉक्टर गोपीचंद नारायण का तनकीद का सफर तकरीबन 6 दहाइयों के अरसे पर मुहित है। उनकी पहली तहकीकी और तनकीदी किताब बाज़मान हिंदुस्तानी किस्तों में महफूज उर्दू मजमूइयाँ हिंदुस्तानी किस्तों से महफूज मजमूइयाँ 1959 में शाया हुई। उसके बाद से 21वीं सदी के रुबे अव्वल तक उनकी तकरीबन 45 तसानीफ और तालीफात मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उनकी तहकीकी, लिसानियाती और तनकीदी मुताला शामिल है। प्रोफेसर गोपीचंद नारायण का तनकीद-निगारी की शुरुआत छठी दहाई में हुई, जबकि उर्दू में तरक्की पर तहरीक और तनकीद की जगह जदीदियत उसकी अहमियत पसंद तनकीद दे रही है। इसी दौरान 1966 में शब्दुर्रहमान फारूकी ने शब्दकोन का इजरा किया इलाहाबाद से, जो अपनी माहियत में जदीदियत का तर्जुमान रिसाला था। उस दौरान जो जदीदियत मुसन्नफ़ात फारूकी की हमनवाई में सामने आए, उनमें एक अहम और मोतबर नाम गोपीचंद नारायण का भी है।
कुछ बरसों तक वो जदीदियत से मुतासिर और मुस्तफीद रहे, मगर रफ्ता रफ्ता उन्हें जदीदियत की मफहूमी फन, दाखिलत पसंदी, एहमान पसंदी और अदब के अर्जी और तहजीबी सरोकारों से इनहराफ का एहसास हो गया। फ्रांस से वो जदीदियत पसंद तनकीद से अपनी बेइमानी और बेदारी का इजहार करते हुए अदब के उसलूबियाती और तहजीबी मुतालात पर मरकूज हुए। 1980 के बाद से वो उर्दू में माबादी जदीदियत की थ्योरी की तरवीज और इशाअत में सरगर्म कार रहे। 1993 में उन्होंने साख्यात और मशरक़ी शेरियात नामी तकरीब से उर्दू दुनिया को रोशनास कराया, जिसमें मगरबी जदीद तरीन अदबी और इंतकाली अफकार और नजरियात से रोशनास कराते हुए इस तरह तफसीर के जरिए से उन्होंने जदीदियत के अपनी तसव्वुरात की तरदीद करते हुए अदब और शेर में माबादी जदीद सूरत हाल के इलाकाई और समाजी व तहजीबी तसव्वुरात की निशानदेही करते हुए उनकी अहमियत और मार्गत का एहतराम कराया। गोपी चंद नारंग के माबादी जदीदियत के तसव्वुरात और तनकीद की तारीफ से मुतासिर होने वाले दूसरे नाक़दीन में वहाब अशरफी, वज़ीर आगा, फहीम आज़मी, अबुल कलाम कासमी, निज़ाम सिद्दीकी, समीर बदायूनी और 21वीं सदी के नए नाक़दीन में शाफिर किदवाई, अलीगढ़ वाले, शेख कासिम खान, हुमायूं अशरफ, मौला बख्श, मरहूम कौसर मदरी और नासिर अब्बास नैय्यर काबिल ज़िक्र है। गोपी चंद नारंग का तनकीदी अरसा-ए-कार 60 वर्षों को मुहित है। इस दौरान उनकी तनकीद निगारी के मुख्तलिफ असालीब पर मुश्तमिल मुतादिद तसानीफ मंजर पर आई है। इनमें तहज़ीब मुतालात से मुतालिक तनकीदी तसानीफ में हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, जदीदियत के बाद उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन और तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, उर्दू ज़बान और इंसानियत, फिक्शन, शेरियात, तशकील और तनकीद, काबिल आतिश नज़ा और गालिब मानी आफरीनी तसल्लियाती वज़ह सुन्नता और शेरिया, उनकी किताबें हैं। गोपी चंद नारंग का शुमार उर्दू के उन मुहक़्क़िक़ीन और नाक़दीन में होता है जो उर्दू को हिंद ईरानी तहज़ीब यानी कि गंगा नमी तहज़ीब की अलामत तस्लीम करते हैं। उनके नज़दीक उर्दू और हिंदी दो सगी बहनें हैं और खड़ी बोली इनकी माँ है। प्रोफेसर महफूज हुसैन खां, मुहिद्दीन कादरी ज़ोर, सुहेल बुखारी, ख्वाजा अब्दुल फारूकी और ज्ञानचंद जैन वगैरह इस कबील के नाक़दीन हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान उसके शेर व अदब को खड़ी बोली के बद से पैदा शुदा और हमारी मिली जुली तहज़ीब और सक़ाफ़त का परवरदा करार दिया है। उर्दू अदब और शेर की तख़लीक़ में रोज़ अव्वल से मुसलमानों के साथ ही साथ हिंदू और ईसाई शोरा अब्बा भी शामिल रहे हैं। इन्होंने हमारे मुल्क की तहज़ीबी फ़ज़ा में सयाल दास्तानों, किस्सों और शेरी रिवायात की रोशनी में नसरी और मंजूम दास्तानें, दोहा, गीत, आरामासा और रेख्ता की सूरत में बेश कीमत सरमाया सुकून यादगार छोड़ा है। मज़कूरा मुहक़्क़िक़ीन और नाक़दीन ने उर्दू के इस तारीख़ी सरमाए का मुताला अपने तारीख़ी और तहज़ीबी शऊर आगरी की रोशनी में किया है। गोपी चंद नारंग के तनक़ीदी मुतालात इस खुसूस में इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं। उन्होंने उर्दू के नसरी और शेरी अदब को यकसा तौर पर अपनी तहज़ीबी तरीक़े नफ्स का मौजू बनाया है। उर्दू ज़बान की तहज़ीबी, समाजी और अर्ज़ी ख़ुसूसियात और कैफ़ियत बयान करते हुए वो लिखते हैं कि उर्दू हमारी सदियों की तहज़ीबी कमाई है। ये मिली जुली गंगा जमनी तहज़ीब का वो हाथ है जिसने हमें बनाया और संवारा है। ये हमारी शिनाख्त है, इसके बगैर न सिर्फ हम गूंगे बहरे हैं बल्कि बेअदब भी। उर्दू को महज एक ज़बान कहना उर्दू के साथ बेहिसाबी करना है। ये एक तर्ज़ हयात, एक उसलूब ज़ीन, एक अंदाज़ फ़िक्र या जीने का एक तरीका और तरीक़ा भी है। इसलिए कि उर्दू सदियों के तारीख़ी रब्त और इर्तिबात से एक जीती जागती जिंदा तहज़ीब का एक ऐसा रोशन सितारा है जिसकी कोई दूसरी मिसाल कम अज़ कम बरे सग़ीर हिंदो पाक में नहीं मिलती। अपने इसी मिसाली और तहज़ीबी नुक्ता नज़र की रोशनी में गोपी चंद नारंग ने उर्दू मसनवियों का तारीख़ी, तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जायज़ा लिया है और उनमें मौजूद तहज़ीबी और फ़िक्री तसव्वुरात, मज़हबी एतक़ादात और समाजी सरोकारों की निशानदेही की है। उर्दू मसनवी के तायुन क़द्र के ज़िम्न में गोपी चंद नारंग रस्मदराज हैं। उर्दू मसनवियों की क़द्र व क़ीमत जानने और तारीख़ अदब में उनका सही मक़ाम मुतय्यन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनका जायज़ा तारीख़ी और माशरती पस मंज़र के साथ किया जाए। उर्दू अदब ने फ़ारसी से बहुत कुछ लिया, इसमें ईरानी और इस्लामी रिवायात का रंग भी गहरा है,
لیکن یہ ہندوستان سے بیگانہ محض نہیں ہے، اس نے یہاں کے ماحول، معاشرت اور تہذیب و تمدن کے اثرات بھی قبول کیے ہیں۔ اردو کی دوسری اصناف سخن کی طرح ہماری مصنوعات بھی اس اخذ و قبول، اختلاف و اشتراک کا پتہ دیتی ہیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعاقب کے بعد یہاں تہذیبی اور معاشرتی سطح پر کار فرما رہا۔ ادبی مصنوعیوں میں عموماً قصے، کہانیاں بیان کی جاتی تھی، ان کا گہرا تعلق قومی روایات، مذہب اور معاشرت سے ہوتا تھا۔ ہماری مصنوعات چونکہ مستقل تہذیب اور ملی جلی معاشرت کے زیر اثر لکھی گئی، اس لیے ان میں اسلامی قصے کہانیوں کے علاوہ ہندوستانی لوک کتھاؤں اور عوامی روایتوں سے متاثر ہونے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان مصنوعیوں کے موضوعات اور تہذیبی و مذہبی سروکاروں کے لحاظ سے گوپی چند نارائن نے انہیں 6 حصوں میں تقسیم کیا کر کے اس کا سماجی معاشرتی نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ مذہبی مصنوعات جیسے رامائن، مہابھارت، بھاگوت وغیرہ وغیرہ۔ تاریخی مصنوعات علی نامہ، استدیرہ، میکائی نامہ، سفر نامہ نظام الدولہ، فتح نامہ ٹیپو سلطان وغیرہ۔ تاریخ بڑی وغیرہ۔ وہ مصنوعات ہندوستان کے معاشرتی قواعد و آثار کی تفصیل ملتی ہے۔ وہ مصنوعات جن میں ہندوستان کے معاشرتی قواعد و آثار کی تفصیل ملتی ہے، میں شاہ حاتم، میر تقی میر، راغب دہلوی، فائز دہلوی، صاحب جعفری اور شیر علی افسوس کی مصنوعات ہولی کی تاریخ میں، عاطف کی مصنوعی حسنی کے بیان میں اور میر کی مصنوعی گرگ بازا میں بھی قدیم ہندو معاشرت کے بعد پہلوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ طبقہ نسواں کے آداب و اطوار، لباس، پوشاک، رہن سہن اور شادی بیاہ کی رسوم کی تفصیل، حسن عشق، پھول بند، در بیان قصد خدائی، تصویر، سیر و بیان، مصنوعی شادی، مصنوعی ہندی، سیر عشق، بہار عشق، فریب عشق، مرزا صوت کی مصنوعیوں میں اور حجاب زنا، منیر شکر بازی وغیرہ کی مصنوعی۔ وہ مصنوعات جو ہندوستان کے کسی مذاہب یا موسموں کے بارے میں ہیں، ان میں سودا کی مصنوعی گرمی کے بیان میں، میر کی مصنوعی در مذمت برقرار، قائم کی مصنوعی در بیان سرما اور مصنوعی در بیان گل ویلا، مصنوعی کی مصنوعی گرما اور آتش زدگی اور در بیان موسم سرما، سورت کی مصنوعات در بارائے سرما، گرما اور برسات شامل ہیں۔ ہندوستانی موسموں کی دل فریبی اور دلکشی کا اظہار اردو کے قدیم 12 ماسوں میں کیا گیا ہے۔ ان میں فکر کہانی محمد افضل، 12 ماسی عبدالولی حضرت، فکر کہانی الہی وقت کا ناندوی، 12 ماسا 12 ماسا قاضم علی جوان وغیرہ اہم ہیں۔ وہ مصنوعات جن میں حب الوطنی کے جذبات تصورات پائے جاتے ہیں، ان میں حضرت شاہ مراد کی مصنوعی در بیان لاہور، ولی کی مصنوعی شہر کی تاریخ میں اور ہدایت اور سعادت یار خان انگریز کی مصنوعات بنارس کے حکم و خوبی کے بیان میں، محمد بخش شہید اور خواجہ بادشاہ کی مصنوعات لکھنؤ کی تاریخ میں، کھنو لال طرف کی مصنوعی امین آباد کی تاریخ میں، مومن کا مومن کی مصنوعی جہادیہ، واجد علی خان کی سن اختر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ہندوستانی قصے کہانیوں سے ماخوذ مصنوعات، ان میں وہ مصنوعات شامل ہیں جن کا تعلق پورانک قصوں سے ہے یا جو ہندوستان کے قدیم روایتوں اور لوک کتھاؤں سے ماخوذ ہیں۔ پورانک قصے مہابھارت، رامائن اور ہندوؤں سے دوسرے پرانوں سے متعلق ہیں۔ ان میں سے اردو میں زیادہ تر نل و دمینتی، دشینت اور شکنتلا و ستیوان اور ساوتری کے قصے لیے گئے ہیں۔ ان قصوں پر اردو میں 11 مصنوعات لکھی ہیں۔ لوک کہانیوں میں شکر میں قدم راؤ، پدم راؤ، خودی نامہ، مینا سکونتی، منوہر، مدھو مالتی، اود و سندر، کام، روپ و کلا کام وغیرہ شامل ہیں۔ شمالی ہند کی مصنوعیوں میں سنگاسر بتیسی، راجہ بھگوان، چندر کرن، راجہ چندر گپت اور رانی چندر کرن وغیرہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہند ایرانی قصوں پر مبنی بہت سی مصنوعات دکن اور شمال ہند میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں مصنف نے پھول بند اور شہر بیان، کردار نصیر کا تہذیبی مفصل اور تہذیبی مطالعہ پیش کیا۔ گوپی چند نارنگ اردو مصنوعی کے سماجی، تاریخی اور تہذیبی مطالعات کی بغیر ناقد جناب بصیرت کا اعتراف ہمارے فقہ ناظرین مثلاً احتشام کافی دور وغیرہ نے بھی کیا۔
प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब ने जो लिखा है कि गोपीचंद नारंग उर्दू के मिजाजदार हैं और कला की पर उनकी गहरी नजर है। उनकी तहकीक से खलक प्रेमी का इशारा हो जाता है कि उर्दू मजमूइयाँ बुलबुल की दास्तानें नहीं और दूसरी अवामी रवायात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तेज बहादुर फखरू और भरत मोहन दत्ता केबी के बाद उर्दू दुनिया एक ऐसे दिलावर की मुंतजिर थी जो अपने अदबी व इल्मी कामों से उनके तहजीबी किरदार को ज्यादा वाज़ेह कर सके। उर्दू मजमूइयों के अलावा प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने अपनी दूसरी तनकीदी तसानीफ में उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी उर्दू शायरी में भी उर्दू शायरी का समाजी और तहजीबी सकाफती मुताला पेश किया। नारंग साहब से पहले उर्दू शायरी का इस कदर मुफस्सल और रसाकाराना और दानिशुराना जायजा नहीं लिया गया। गोपीचंद नारंग साहब ने उस तनकीद को मगरबी नजरियात और तालीम नक्श से मुस्ताद कराने के साथ साथ उर्दू शेर व अदब को उसकी कौमी समाजी और तहजीब और सकाफती सियासत और समाज में तब्दील व तनकीद की कारआमद कोशिश की है। उर्दू तनकीद की तारीख में उनके तनकीदी मबाहिस और मुतालियात कद्र मंजिलत की निगाह से देखे जाते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। चलो हमारा खत्म हो गए। अब एक साथ हम ज्यादा करेंगे, एक साथ अजमल भाई इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। सुझाव देने का आप तो लोगों का जिन्होंने मज़ामीन पढ़े इत्मीनान से सुने। अंग्रेजी पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा हिंदी को पढ़ा है, उर्दू की स्टूडेंट को हिंदी पढ़ा। अजमल भाई अब आप सब ऐलान करेंगे सेमिनार का। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप तमाम शुरका हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और कामयाब बनाया, उसके लिए मैं उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे जो साथी हैं, हमारे जो हेड हैं जनाब राम सिंह चौहान सर, मुकेश सर और कमर नाज़रीन मैडम की तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हज़रात ने इस प्रोग्राम को बहुत एहतमाम से सुना और कामयाब बनाया। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे मेरे ऊपर आ जाओ भाई। हमने कितनी